Hello class 12 students, welcome to today's online class, and in today's online class we are going to understand and discuss about the last topic, we can say the last topic of this chapter, magnetism and its magnetism and matter, which is properties of matter. In properties of matter we'll understand that matter behaves in basically three ways, and we have understood in terms of magnetism that how matters shows magnetism. In our previous class we understood about magnetic properties of an atom. हमने पिछली क्लास में समझा था कि कैसे एक एटम डाइपोल की तरह काम करता है. हमने पिछली क्लास में ये समझा था कि जब एक एटम की बात करते हैं तो एक एटम में बीच में एक न्यूक्लियस रहता है. ठीक, न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन का चार्ज हुआ पॉजिटिव चार्ज. इसके आसपास घूमता है, इसके इसके अराउंड घूमता है इलेक्ट्रॉन, not one electron, but we can say, just let us take an example of electron. An electron is revolving around this nucleus. So we already know that motion of charge that motion of charge motion of charge से क्या होगा? Motion of charge will lead to electric current, and here the current is moving in the opposite direction of motion of charge. है ना, हमने क्या देखते हैं, हम यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये पिछली क्लास की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यू लाइक दैट वे. So what will be the motion of current? What will the flow direction of current? The direction of current will be in this direction. I will be in this direction. Okay, I will be in this direction, and this direction of current is in circular loop. It is in circular loop, और सर्कुलर लूप के होने के कारण, सर्कुलर लूप में हमने पिछली चैप्टर में पढ़ा है कि if the flow of current is in circular loop, then there creates a dipole moment create होता था. याद आ रहा है, जो डाइपोल मोमेंट होता था वो m is equal to I into एरिया वेक्टर. ये था डाइपोल मोमेंट. इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता था, हम कैसे कैलकुलेट करते थे? बाय राइट हैंड थंब रूल. करंट के डायरेक्शन में घुमाइए अपने आर्म को, तो जिस डायरेक्शन में थंब विल शो, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट. एंड डाइपोल मोमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा था, डायरेक्शन जिस तरफ था उस तरफ बनता था एक नॉर्थ पोल, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में साउथ पोल. मतलब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन will create a dipole, north and south pole dipole, two poles it will create, just like a magnet. It means every atom behaves like a magnet. It shows that every atom behaves like a magnet. It shows some magnetic property. It is having magnetic field around it. और इसके कारण हर मैटर, that's why हर मैटर, every matter shows a magnetic property. What kind of magnetic property? It depends on that element or that matter. So today we'll discuss that thing only, the properties of matter, in a very easy way and a very short way. We will see that three kinds of matter according to the magnetic property of matter. We will see three kinds of matter will be there. First one will be the diamagnetic, जिसके बारे में थोड़ा सा हमने देख लिया था, हीलियम के बारे में देख लिया था हमने, डायमैग्नेटिक क्या होता है. Then we'll see about the paramagnetic, and the third one we'll see about is the ferromagnetic. So let us understand all these three. So now let us move to the properties of matter. The first kind of matter which according to the property we can see is the first one is diamagnetic. और diamagnetic matter क्या होते हैं इसको समझते हैं. First of all is diamagnetic. We understood
अभी तक हमने देखा, अभी तक हमने समझा कि एक अगर न्यूक्लियस हो, उसके आसपास अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसके आसपास अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो पोल बनेंगे जिसको हम डाइपोल कहेंगे. If one electron is rotating clockwise and another electron is in the opposite direction, that is anti-clockwise. अगर एक clockwise घूम रहा है इलेक्ट्रॉन और अगला anti-clockwise घूम रहा, तब what will happen? Because of the clockwise rotation, because of the clockwise revolution of first electron, a dipole will be created, and because of the anti-clockwise direction, anti-clockwise motion revolution of next electron, another dipole will create. एक का डाइपोल मोमेंट दूसरे डाइपोल को, दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर देगा. द फर्स्ट डाइपोल मोमेंट, द इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डाइपोल मोमेंट विल कैंसिल द डाइपोल मोमेंट ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन. ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, डाइपोल मोमेंट दोनों का कैंसिल हो गया, और इसके कारण एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा मैटर है जिसमें एटॉमिक डाइपोल तो बन रहे हैं मगर उसका डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं. ऐसे मैटर्स को हम डायमैग्नेटिक मैटर्स बोलते हैं. ऐसे मैटर को हम क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. क्या होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं, वी कैन सी फ्रॉम द डेफिनेशन, आई विल शो यू अबाउट इट. वी कैन सी फ्रॉम द डेफिनेशन that in some atoms of matter, the net magnetic field, the net magnetic moment of all electron in an atom adds up to be zero. मतलब क्या हो रहा है, that one atom is there, revolution of electron is going on, but the net dipole moment in that atom, इसमें जितने सारे इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, कोई क्लॉकवाइज हो रहा, कोई एंटी क्लॉकवाइज हो रहा, कोई किसी डायरेक्शन में हो रहा, कोई उल्टे डायरेक्शन में हो रहा, इसके कारण उनका नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो हो जाए. तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, that kind of substance will be called diamagnetic substance. Diamagnetic substance. ऐसे में हम कहेंगे that it is diamagnetic. देखेंगे example, we'll see about the example, but first of all, this substance is called diamagnetic, and this phenomena is called diamagnetism. ऐसे फिनोमिना को, जो ये परिघटना हो रही है, उसे हम कहेंगे डायमैग्नेटिज्म. होता कैसे, यू मस्ट हैव सीन द हीलियम का आपने जब केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस इट इज अ डायमैग्नेटिक. क्या होता है उसमें, बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सच अ वे दैट one is moving in another direction, another electron is moving in another direction due to the revolution, opposite revolution. उसको शो करने के लिए हम लोग कुछ ऐसा शो करते थे, याद आ रहे हैं बात, एक ऐसे actually what it is it is showing that the dipole, it is showing that the dipole moment is cancelling each other. One dipole moment of one electron, another dipole moment of another electron. Two electrons are there on the orbit. उनका मोशन एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर दे रहा है, और बचा क्या फिर, बिकॉज ऑफ दैट नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो, जिसके कारण इस सब्सटेंस को डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, और ये सब्सटेंस, ये फिनोमिना को हम कहते हैं डायमैग्नेटिज्म. एंड we'll see about the properties also, some of the basic properties of diamagnetic substance. So about the helium, let us see about the helium on this PDF. Helium, it has two electrons which revolve in opposite direction to each other, creating opposite dipole moment to each other, which cancels each other. Hence magnetic moment of
some atom is zero. In the same way some atoms are there just like helium, जिनके magnetic moment सब cancel हो जाते हैं और आखिरी में the net dipole moment is zero. Some examples of elements are copper, helium. Some examples are this, and some compounds are also there. तो कुछ कंपाउंड के भी हो रहे होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल आप देखेंगे वाटर और NaCl, इनमें भी ऐसे ही केस हो रहा है, लाइक हाइड्रोजन इज देयर कंबाइंड टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन combined with one atom of oxygen. In that way the net effect, net dipole moment, net magnetic dipole moment of water H2O comes out to be zero. इसीलिए इस सब्सटेंस को भी हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं, और इस फिनोमिना को हम डायमैग्नेटिज्म बोलते हैं. व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज? सो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच एटम इज जीरो. अगर एक एटम की बात करें किसी भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का, तो उस हर एक एटम का नेट मैग्नेटिक, या हम बोल सकते हैं नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो होगा. It has been also seen that they are weakly repelled in external magnetic field. ये भी देखा गया है कि ये बहुत ही वीकली रिपेल होते हैं जब एक मैग्नेटिक फील्ड पे रखा जाता है इस सब्सटेंस को. इसके बारे में आखिरी में देखेंगे. और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम्स लेस डेंस इनसाइड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. So what actually happens? Let us see about it. Let us see that this is this substance. Let us see that one substance is there which is diamagnetic. एक diamagnetic substance ले रखे हमने. Diamagnetic substance, like for example, whatever examples have been given to you. ये diamagnetic substance दिए हुए हैं. As we can say that diamagnetic substance में डाइपोल तो क्रिएट हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एटम क्या कर दे रहा है, एक एटम में उसके डाइपोल जो क्रिएट होते थे वो कैंसिल हो जा रहे हैं. एक इलेक्ट्रॉन उल्टा घूम रहा है, उसका उल्टा घूम रहा है. तो व्हाट इज देयर, वी कैन नॉट शो इट विथ एरो, नॉर्थ साउथ दिखा नहीं सकते. लेट अस शो इट विथ लाइक दिस. दिस इज वन एटम, दिस इज वन एटम, दिस इज वन एटम, वन एटम, वन एटम, लाइक दैट. If you have not understood what is the about the atomic dipole and how dipole is created, इससे पिछले वाले लेक्चर को आप उसकी वीडियो को जरूर देखें. So see here dipole has not been created, क्योंकि ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसलिए मैंने उसे by this small circles I have shown it. अब देखिए जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई होता है तो इस मैटर, इस सब्सटेंस के अंदर से भी वो गुजरता, ठीक. मगर क्योंकि इसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल तो क्रिएट हो नहीं पाए हैं, डाइपोल क्रिएट हो नहीं पाए, एटॉमिक डाइपोल क्रिएट नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ द कैंसलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट. तो अब क्या होने वाला है यहाँ पे, ये जो मैटर है ये एक अपोजिट डाइपोल क्रिएट करेगा. जब इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा गया, तो एक अपोजिट डाइपोल क्रिएट करेगा ये, जिसे इंड्यूस्ड डाइपोल कहेंगे, जिसे हम इंड्यूस्ड डाइपोल कहेंगे. और वो इंड्यूस्ड डाइपोल कुछ ऐसा होगा कि वो जो इफेक्ट हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड इस पे लगी है, उसको अपोज करने वाला इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा. इट मीन्स दैट इट विल क्रिएट a little bit of a very weak small dipole which will oppose this effect, which is trying to align this, or we can say which is trying to interact with the atoms. अब एटम्स के पास खुद का तो डाइपोल है नहीं, नॉर्थ पोल साउथ पोल है नहीं, तो वो क्या करने वाले. अब ये इंडक्शन के बारे में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, बस अभी के लिए समझ लीजिए इंडक्शन के बारे में आप इतना जानते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल इफ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड और यहाँ पर नॉर्थ पोल साउथ पोल तो क्रिएट नहीं हो रखा है, तो एक वीक
थोड़ा सा वेरी स्मॉल वीक induced magnetic field is magnetic dipole is created in these atoms which opposes the effect, which opposes the main cause of magnetic field, which is external magnetic field. इसीलिए that's why we can say that weakly repelled. अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिशन में एक नॉर्थ साउथ छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा अलाइनमेंट हुआ होगा कुछ एटम्स का, तो उनको क्या होगा, उनको क्या फील आएगा, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिपल्शन का क्या करना चाहेंगे वो, इसको वापस मोड़ना चाहेंगे या फिर इसको दूर करना चाहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिशन में, अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स महसूस करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है इनकी इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, वीक रिपल्शन, वीक रिपल्शन मिलेगा। और एक और बात आती है, क्या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कैसे फील करेंगे, वीक रिपल्शन फील करेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड में इसे रखा जाएगा तो बहुत ही वीक। ठीक, वन मोर थिंग इज दैट मैग्नेटिक फील्ड जब किसी मैटर के अंदर से गुजरती है, मैग्नेटिक फील्ड जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ क्रिएट किया, तो ये मैटर के अंदर गुजरेगी तो वो अलग अलग सब्सटेंस से अलग अलग इफेक्ट मिलता है उन्हें। लाइक फॉर एग्जांपल अगर इस सब्सटेंस के अंदर से गुजरेगी, इस सब्सटेंस के अंदर से जाएगी, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी बहुत कम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, वेरी लेस डेंस। ये डेंस कब होती, जब इस मैटर के अंदर का डाइपोल इस बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को एडअप करता या साथ देता उसका। ये कब होता, जब इसके अंदर भी एटॉमिक डाइपोल क्रिएट होते, मतलब छोटे छोटे मैग्नेट्स क्रिएट हो रहे, नॉर्थ साउथ इसमें भी क्रिएट होते रहते। वो एटॉमिक डाइपोल क्या करते, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने के बाद में खुद मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है उसको डेंस बना देते हैं, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाता। क्यों बढ़ जाता, क्योंकि अलाइन हो जाते सारे के सारे छोटे छोटे नॉर्थ साउथ ये सब अलाइन होकर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते जो स्ट्रांग रहती, और वो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड अंदर में दिखती। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, हल्का सा रिपल्शन हो रहा है, यानी हल्का सा एंटी डायरेक्शन, उल्टे डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण से मैटर के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी कम हो जाता है। इसीलिए आखिरी पॉइंट में लिखा है दैट इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस the density of magnetic field due to external magnetic field becomes less dense. So this is a property. पहला क्या है, that पहला प्रॉपर्टी हो जाएगा, ये हमारा पहला प्रॉपर्टी ये बोलता है कि नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज 0, एंड दूसरी प्रॉपर्टी बोलती है कि वीक रिपल्शन फील करते हैं ये इस काइंड ऑफ सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस होते हैं, और magnetic field lines becomes very less dense inside the diamagnetic substance. So this is it about diamagnetic substance. Now we move towards the paramagnetic substance. Let us now move towards the paramagnetic substance. So now let us move towards the next type of properties of matter, which is पैरामैग्नेटिक, जिस फिनोमिना को हम कहेंगे पैरामैग्नेटिज्म। अभी हमने देखा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या हो रहा था, एटॉमिक डाइपोल नहीं बन पा रहा था। किसी भी मैटर के अंदर एटॉमिक डाइपोल बनता है, क्यों, क्योंकि रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर अराउंड द न्यूक्लियस, तो करंट फ्लो हो रहा, बोल सकते हैं वहां पे एक डाइपोल बन रहा है, डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा, और उस डाइपोल मोमेंट क्रिएट होने के कारण हम उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एक एटम को शो कर सकते हैं, जस्ट फॉर द स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म। अब देखे थे उसमें कि एक इलेक्ट्रॉन के मोशन ने दूसरे इलेक्ट्रॉन के मोशन के कैंसिल कर दिया, और नेट डाइपोल मोमेंट वहां 0 हो रहा था। बट अब जिस प्रकार के मैटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, मतलब नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा। मींस अब कुछ एटम्स की बात होगी, एग्जांपल भी देखेंगे, कुछ एटम्स के एग्जांपल भी देखेंगे, तो वो क्या होगा, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज
और आसपास जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके कारण डाइपोल क्रिएट हो रहा। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, यानी करंट ऐसे घूम रहा, करंट ऐसे घूम रहा, ऐसे घूम रहा, नीचे डाइपोल क्रिएट हो रहा, इधर नॉर्थ इधर साउथ, वही पुरानी कहानी। इसका मतलब अब हम लोग इस प्रकार के मैटर को हम लोग शो कर सकते हैं डाइपोल से, यानी कि लाइक एन एरो। अब ये जानने वाली बात ये है कि इस प्रकार के जो मैटर होते हैं इसमें जो डाइपोल्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज्ड रहते हैं। मतलब वो मैटर के अंदर उनका कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट कि नॉर्थ नॉर्थ एक तरफ, साउथ साउथ एक तरफ, ऐसा कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता। इनका रैंडम अरेंजमेंट रहता है, बिल्कुल अव्यवस्थित रहते हैं, अगर अच्छी भाषा में बोले हिंदी में। तो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट, रैंडम अरेंजमेंट, इधर उधर कहीं भी अरेंजमेंट है इस डाइपोल का, नॉर्थ 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 किधर भी है एक तरफ का, दूसरे एटम का भी किधर भी है। तो इन दैट वे वी कैन से इफ वी पिक एनी वॉल्यूम, किसी भी वॉल्यूम को हम ले लें, मतलब एक सैंपल वॉल्यूम ले लें, यहाँ पे कोई भी सैंपल वॉल्यूम ले लेता हूँ, मान लो मैं ऐसा एक वॉल्यूम ले लेता हूँ, यहाँ पे एक वॉल्यूम ले लेता हूँ, इतने का वॉल्यूम ले लेता हूँ। इस वॉल्यूम को निकाल कर मैं इसका नेट डाइपोल मोमेंट देखूं, नेट डाइपोल मोमेंट इसका, तो भी ये जीरो आएगा। क्यों जीरो आया इसको समझने की कोशिश करिए। एक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर पड़ रहा है, एक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर पड़ रहा है, एक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, एक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, इट दे ऑल ऑन अ कंबाइंड वे कैंसल्स ईच अदर व्हेन वी टेक अ वॉल्यूम ऑफ इट। इसका मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है, मगर एटॉमिक डाइपोल बनते जरूर है, एटॉमिक डाइपोल बनते जरूर है। मींस atomic dipole exists but net dipole moment of the whole matter becomes zero. Why? Because they cancels each other. ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके डाइपोल पूरे मैटर के लिए एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। इसमें हर एक एटम डाइपोल तो बन रहा है, मगर एक डाइपोल मोमेंट दूसरे डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर देगा। इसके कारण से इनका नेट मैग्नेटिक इफेक्ट हमको अच्छे से नहीं दिख पाता, एक वीक मैग्नेटिक इफेक्ट दिखता है। प्रॉपर्टीज पे बाद में जाएंगे, अभी समझने की बात यह है ये कि ऐसे सब्सटेंस जिनमें एटॉमिक डाइपोल बन रहा है, एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट, एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट होगा, मगर नेट डाइपोल मोमेंट ड्यू टू द रैंडम अरेंजमेंट नेट डाइपोल मोमेंट यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट becomes zero. Why? Due to random arrangement, due to random arrangement of dipoles, atomic dipoles. रैंडम अरेंजमेंट रह गया और इसके कारण हर एक डाइपोल मोमेंट ने अगले डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर दिया। व्हाट इज लेफ्ट हियर? नेट डाइपोल मोमेंट becomes zero. So what we can say about it? We can say about it, let us see in the PDF, that we can say that paramagnetic substance, in some matters the net magnetic moment of all electron in an atom do not add up to be zero. The net magnetic moment of all electron in an atom do not add up to be zero. कुछ ना कुछ वहां पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल, एटॉमिक डाइपोल बनेगा, मगर here atomic dipole exists but their arrangement is going to be random. So due to the random arrangement of dipole, net magnetic moment in a small volume is still zero. किसी स्मॉल वॉल्यूम को ले लो आप, छोटे छोटे वॉल्यूम में पूरे को बांट दो, तो उन छोटे छोटे वॉल्यूम्स में इनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो रहा है। बट ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मगर जब इसमें हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, इसमें जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगेगा तब कहानी कुछ और हो जाएगी,
क्योंकि एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है, तब एटॉमिक डाइपोल के एग्जिस्ट होने के कारण जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगेगा तो ये सारे डाइपोल क्या करेंगे, अपने आप को अरेंज करना चाहेंगे, नहीं सारे तो नहीं, बट some of them, not some of them, most of them will try to arrange themselves. कैसे अरेंज करेंगे, अब वो वाली बात करिए, आप पिछले लेक्चर में देखिएगा कि क्या होता था, एक नॉर्थ साउथ पोल यानी डाइपोल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उसके ऊपर टॉर्क काम करता था, टॉर्क वाली बात याद आ रही है, एम बी साइन थीटा। वो टॉर्क क्या करना चाहता था, अगर वो किसी भी दूसरे डायरेक्शन में तो उसको अलाइन करना चाहेगा अपने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और इसके कारण बहुत सारे जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो अरेंज होने लग जाएंगे। अरेंज होने के कारण कुछ डायग्राम ऐसा दिखेगा, कुछ डायग्राम ऐसा दिखेगा, देखते हैं कैसा। यही डाइपोल्स जो इतने सारे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के पड़ने पर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के आने पर ये डाइपोल्स अब समहाउ अरेंज्ड दिखेंगे, समहाउ अरेंज्ड दिखेंगे। पूरे तरीके से तो अरेंज नहीं हुए रहेंगे मगर कुछ कुछ अरेंज्ड दिखेंगे, और इनके अरेंजमेंट होने के कारण, थोड़ा थोड़ा अरेंजमेंट होने के कारण इसमें मैग्नेटिक अट्रैक्शन होने लगेगा। मतलब इस ये बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी में डायरेक्ट कूद जाए तो हम लोग कि ये जब ऐसे मैटर्स को, ऐसे सब्सटेंस को, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या कहेंगे, इस सब्सटेंस को हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इस सब्सटेंस को हम क्या कहने वाले हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या मैटर, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहने वाले हैं। ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएगा जिसमें डाइपोल क्रिएट तो हो रहे हैं, एटॉमिक डाइपोल, मगर इनका नेट इफेक्ट किसी भी वॉल्यूम के लिए जीरो हो जा रहा है क्योंकि रैंडम अरेंजमेंट है। ऐसे फिनोमिना को पैरामैग्नेटिज्म, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर इनको वीक अट्रैक्शन फील होगा। ये वीक अट्रैक्शन फील करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, वीक अट्रैक्शन फील करेंगे, अट्रैक्शन क्रिएट होगा इसमें, वीक अट्रैक्शन, एकदम तगड़ा अट्रैक्शन नहीं होने वाला। वीक अट्रैक्शन फील करेंगे और साथ में मैग्नेटिक फील्ड इन सब्सटेंस, इन मैटर के अंदर डेंस हो जाएगी। एकदम ज्यादा डेंस तो नहीं होगी मगर डेंस होगी जरूर। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ डायपोल अरेंज हो गए हैं और उनका नेट इफेक्ट अब नेट इफेक्ट, अब एम नेट जीरो नहीं हो रहा है, अब एमनेट जीरो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब अरेंजमेंट हल्का हल्का हो गया है, अब एमनेट जीरो नहीं हो रहा है, और एमनेट जीरो नहीं हो रहा है मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हो रहा है, मतलब इनका खुद का भी एक पूरा एक साथ का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण अरेंज होकर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर में हल्का सा डेंस होगा, हल्का सा डेंस होगा, डेंस जरूर होगा। तो क्या बात हुई, चलो देखते हैं पीडीएफ में, देखते हैं क्या बात हुई पूरी, और एग्जांपल भी देखते हैं ऐसे मैटर्स कौन से हैं। सो बट ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द एटॉमिक डाइपोल अलाइंस विद द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखो हल्का सा अलाइनमेंट हो गया, और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम, सोडियम, ये मैटर्स हैं जो हल्का सा रिपल्शन, हल्का सा अट्रैक्शन फील करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रख देने पर। प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम इज नॉट जीरो, ईच एटम, एक एक एटम की बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट उसका जीरो नहीं हो रहा, हाँ, मगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैटर इज समहाउ जीरो, दे आर वीकली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लगेगा तो ये अट्रैक्शन फील करेंगे, बहुत ही वीक। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम्स डेंस इनसाइड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में अंदर में मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाए हम एक्सटर्नल तो अंदर की मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी डेंस हो जाएगी। ये हुई प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिज्म। अब आखिरी बचा है फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और फिनोमिना बोलेंगे फेरोमैग्नेटिज्म। सो लेट अस सी दैट पार्ट आल्सो। So now let us understand the last kind of matter और type of matter, और उसकी प्रॉपर्टी भी समझेंगे।
फेरोमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और जिसके फिनोमिना को बोल सकते हैं फेरोमैग्नेटिज्म. It is very easy to understand, as we already know that डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट होते हैं एटम्स में, एटॉमिक डाइपोल जिसको बोलते हैं. तो ये इसमें भी, इस काइंड ऑफ मैटर में भी, इस प्रकार के मैटर्स में भी एटॉमिक डाइपोल क्रिएट होंगे बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. नॉर्थ पोल साउथ पोल क्रिएट होगा. यानी कि किसी मैटर की बात करें जो फेरोमैग्नेटिक है तो उसमें डाइपोल्स क्रिएट हो रहे होंगे. और इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में एक खास बात होगी कि ये थोड़े बहुत अरेंज्ड भी रहेंगे. देखिए, सबसे पहले था डायमैग्नेटिक, उसमें डाइपोल क्रिएट ही नहीं हो पा रहे थे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा था. नेक्स्ट था पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, उसमें डाइपोल क्रिएट हो रहे थे मगर नेट डाइपोल मोमेंट सारे डाइपोल्स का इफेक्ट जीरो हो जा रहा था, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे थे क्योंकि रैंडम अरेंजमेंट था. मगर इसमें अरेंजमेंट रहेगा, हल्का हल्का अरेंजमेंट रहेगा. अगर हम इसको बड़े बड़े डोमेन्स या यूनिट्स में, बड़े बड़े एक पूरा मैटर है उसको थोड़े हम लोग सैंपल ले लें, उसको कुछ कुछ यूनिट्स में ले लें, छोटे छोटे, जिसको हम लोग डोमेन बोलते हैं. डोमेन भी बोलते हैं, कुछ अच्छी बुक में, हमारे एनसीईआरटी बुक में भी डोमेन की तरह लिखा हुआ है. तो इस डोमेन में ये सेल्फ अरेंज्ड भी रहते हैं, यूं अरेंज्ड रहते हैं. इसका अरेंजमेंट होने के कारण इस पर्टिकुलर डोमेन के अरेंजमेंट रहते हैं इसमें. दैट्स व्हाई व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन दैट, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन दैट, ये जल्दी से अपने आप को पूरे के पूरे, और लगभग पूरे तो नहीं हो पाएंगे मगर लगभग पूरे इस मैटर के डाइपोल्स अपने आप को अरेंज कर देते हैं. तो मैं एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे आपको एक यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसा अरेंजमेंट होता होगा. कुछ ऐसा रहता होगा, छोटे छोटे यूनिट्स में, छोटे छोटे वॉल्यूम में ये अरेंज रहते हैं पहले से. अभी मैग्नेटिक फील्ड इसमें लगा नहीं है, फिर भी ये पहले से अरेंज्ड है. और ऐसे मैटर को जिसमें मैग्नेटिक डाइपोल, एटॉमिक डाइपोल बन रहा है, साथ में वो अरेंज्ड भी है, तो ऐसे मैटर को हम कहते हैं फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस. ऐसे मैटर को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. ठीक. अब मैग्नेटिक फील्ड जब लगेगा तो क्या होने वाला है, और कुछ मैटर्स को भी देखेंगे. कुछ मैटर्स जो आप ऑब्वियसली पहले से जानते हो, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आते हैं आयरन, कोबाल्ट और निकल. आयरन, कोबाल्ट, निकल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं. क्या होता है इनके अंदर? इनके अंदर एटॉमिक डाइपोल तो बन ही रहा है, रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कारण, साथ ही ये अरेंज्ड भी है अपने छोटे छोटे डोमेन, छोटे छोटे यूनिट में. पूरे मैटर को अगर बांट दिया जाए तो उसमें कुछ अरेंजमेंट भी दिखता है पहले से इनमें, और इस अरेंजमेंट के कारण जब इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगेगी तो ये क्या करेंगे, ज्यादातर मींस मोस्ट ऑफ द डाइपोल विल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा. मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होने के बाद में कुछ ऐसा दिखेगा कि मोस्ट ऑफ देम, मतलब ज्यादातर जो छोटे छोटे यूनिट्स थे वो अब बड़े यूनिट्स में बदल गए हैं. बड़े यूनिट्स में मतलब ऐसा लगेगा कि ये जो वॉल्यूम था ना छोटा सा, वो अब बड़ा हो गया है. और थोड़े से कहीं ऐसे दिखेंगे कि जहाँ पे अरेंजमेंट कुछ अलग होगा, थोड़ा सा कुछ अलग होगा. अगर इसको मैं इन डोमेन को अलग कर दूं तो ऐसा लगेगा कि जो अलाइनमेंट में थे थोड़े बहुत उसी अलाइनमेंट में थे, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है वो बड़ा हो गया है, वो डोमेन बड़ा हो गया है, वो वॉल्यूम बड़ा हो गया है. ऐसा लगेगा मैग्नेटिक, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एप्लीकेशन से. इसका मतलब कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एप्लीकेशन से ज्यादातर जो डाइपोल्स है, एटॉमिक डाइपोल्स है, वो अलाइन होने लग जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. कुछ ही होंगे जो नहीं होंगे, जिसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड इस मैटर के अंदर बहुत ही ज्यादा डेंस हो जाएगी,
और डेंस होने के कारण, मैग्नेटिक फील्ड डेंस होने के कारण they feel strong attraction, they feel they strong attraction in a magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं आयरन, कोबाल्ट और निकल, दैट वी ऑलरेडी नो। एक मैग्नेट के पास में एक आयरन, कोबाल्ट या निकल के सब्सटेंस ले आएंगे तो अट्रैक्शन फील करेगा। वो क्यों हो रहा था, आज समझ में आया क्यों हो रहा था। बिकॉज ऑफ द एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट एज वेल एज द अरेंजमेंट इज देयर, एंड that arrangement aligns in a more way, in a more better way when external magnetic field is applied because of the other magnet, and वो attraction feel करेगा। तो क्या क्या बात हो रही है यहाँ पे, और सब्सटेंस क्या क्या है, आयरन, कोबाल्ट, निकल। आयरन, कोबाल्ट, निकल हम ये तो पहले ही समझ गए, और प्रॉपर्टीज क्या है ये भी समझ जाते हैं। सो ferromagnetic substance and ferromagnetism. Ferromagnetic substance, atomic dipole exists in such substance. Atomic dipole aligns themselves in same direction in small volume, छोटे छोटे वॉल्यूम में aligned रहते हैं पहले से। On application of magnetic field, external magnetic field, the atomic dipole aligns with the direction of external magnetic field, अलाइंस हो जाते हैं, और छोटे छोटे डोमेन जिसको बोल रहे हैं, एक यूनिट बोल रहे हो, वो वॉल्यूम बड़ा हो जाता है ऐसा लगता है, और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, और प्रॉपर्टी में दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस becomes very dense inside ferromagnetic substance. So this was there in this chapter as well as in this topic, properties of matter. Three type of properties are there, as well as three type of matters are there: diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic. And this phenomena is called diamagnetism, paramagnetism and ferromagnetism. I hope you have understood, as well as you can see that here this is the end of the chapter. कुछ topics हैं जो छूट गए हैं, या फिर that kind of topics has been deleted from this chapter. We'll go through that in the revision part as well. And from the next lecture we are going to start electromagnetic induction. So this is it for today. Keep studying. Have a nice day.